اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ میں مزید ایک روز کی جنگ بندی پر اتفاق 6 روزہ جنگ بندی کی مدت ختم ہونے سے کچھ منٹ قبل مزید یرغمالیوں کی رہائی کے لیے جنگ بندی میں توسیع کی گئی ہے۔ حماس نے 4 غیر ملکیوں سمیت 16 یرغمالی رہا کر دیے ہیں۔ رہا ہونے والوں میں 5 خواتین اور 5 بچوں سمیت مزید 10 اسرائیلی اور 4 تھائی شہری شامل۔ اسرائیل نے بھی مزید 30 فلسطینیوں کو رہا کر دیا۔ توہین الیکشن کمیشن توہین چیف الیکشن کمشنر کیسز کی سماعت آج۔ چیئرمین تحریک انصاف پر فردر جرم عائد ہونے کا امکان۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو سیکیورٹی خدشات کے باعث اڈیالہ جیل سے الیکشن کمیشن نہیں لایا گیا۔ سابق وزیر اعظم کو الیکشن کمیشن کے سامنے پیش نہ کیے جانے کی توقع ہے۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں اسد عمر اور فواد چودھری پر بھی فردر جرم لگے گا، امکان ہے۔ احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف، یوسف گیلانی اور سابق صدر آصف علی زرداری اور دیگر کے خلاف توشیخانہ ریفرنس کی سماعت 20 دسمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ سماعت جج محمد بشیر نے کی ہے۔ وکیل صفائی قاضی مصباح نے عدالت میں کہا کہ نواز شریف شامل تفتیش ہو چکے، ان کی طرف سے گاڑی لینے کا کوئی مطالبہ نہیں تھا۔ عدالت نے کیس پر سماعت 20 دسمبر تک کے لیے ملتوی کر دی۔ سعودی عرب نے پاکستان کی معیشت کو استحکام دینے کے لیے پاکستان کے ساتھ 3 ارب ڈالر کے ڈپازٹ کی مدت میں توسیع کر دی۔ توسیع مملکت سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو فراہم کی جانے والی معاونت کا تسلسل ہے۔ سعودی عرب کے اس اقدام سے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کو برقرار رکھنے اور ملک کی معاشی ترقی میں مدد ملے گی۔ شہر لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں ابر رحمت، صبح ہونے والی ہلکی بارش کے بعد ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ بارش کی وجہ سے لاہور پر ڈرائی اسموک میں بھی کمی ہوئی ہے۔ فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا میں 5ویں نمبر پر آ گیا۔ دوسری جانب وادی نیلم کے بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ کئی علاقوں میں برف باری سے رابطہ سڑکیں بند ہو گئی۔ پیپلز پارٹی آج اپنا 56واں یوم تاسیس منا رہی ہے۔ یوم تاسیس کی مرکزی تقریب کوئٹہ میں ہوگی، جس سے بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے۔ پیپلز پارٹی عوام کے اندر مقبول جماعت کے طور پر ابھری، مگر ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد پیپلز پارٹی پر مشکل ترین وقت آیا۔ پارٹی ہر دور میں کسی نہ کسی بحران سے گزری ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ذاتی دلچسپی کے باعث لاہور کا 4تھا میگا منصوبہ اکبر چوک فلائی اوور مقررہ مدت سے پہلے مکمل ہو گیا۔ اکبر چوک فلائی اوور کو 10 ماہ کی بجائے 7 ماہ سے بھی کم مدت میں مکمل کر دیا گیا۔ فلائی اوور کو آج ٹریفک کے لیے کھولا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اکبر چوک فلائی اوور کا آج افتتاح کریں گے۔ سابق امریکی وزیر خارجہ ہینری کسنجر 100 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ یادگاری تقریب نیو یارک میں منعقد کی جائے گی۔ چین کے ساتھ امریکہ کے تعلقات ہینری کسنجر کی سب سے یادگار میراث میں سے ایک مانے جاتے ہیں۔ یونین کے خلاف سرد جنگ کے پیش نظر وہ خفیہ طور پر چین گئے تھے۔ ہینری کسنجر کو امریکی خارجہ پالیسی کی طاقت کا مرکز تصور کیا جاتا تھا، اس وجہ سے وہ متنازع بھی رہے۔ یوتھ
वर्ल्ड चैंपियन पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर की वर्ल्ड रैंकिंग फाइट आज थाई हरीफ से बैंकॉक में होगी। पाकिस्तानी स्टार बॉक्सर उस्मान वजीर की ये 12वीं इंटरनेशनल फाइट होगी। उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल रैंकिंग फाइट की भरपूर तैयारी की है। पूरी उम्मीद है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर नाकाबिले शिकस्त रहने का एजाज बरकरार रखने में कामयाब रहूंगा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हसनैन हैदर। मैं हूँ ईशा लियाकत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको खबर दें कि इसराइल और हमास के दरमियान गजा में मजीद एक रोज की जंगबंदी पर इत्तेफाक। 6 रोजा जंगबंदी की मुद्दत खत्म होने से कुछ मिनट कबल मजीद गैर कमालियों की रिहाई के लिए जंगबंदी में तोसी की गई। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फौज की जानिब से किसी भी टाइम फ्रेम की वजाहत के बगैर बयान दिया गया कि मुआहिदे के तहत गैर कमालियों की रिहाई का अमल जारी है। तयशुदा फ्रेमवर्क के तहत ऑपरेशनल वक्फा जारी रहेगा। दूसरी जानिब हमास ने 4 गैर मुल्कियों समेत 16 यरगमालियों को रिहा कर दिया है। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास की जानिब से 5 खातीन और 5 बच्चों समेत मजीद 10 इसराइलियों और 4 थाई शहरियों को रिहा किया गया है। तर्जुमान कतरी महकमा खारजा माजिद मोहम्मद अल अंसारी के मुताबिक हमास की जानिब से रिहाई पाने वाले यरगमालियों में दोहरी डीच शौहरियत के हामिल बच्चे समेत 3 जर्मन और 1 अमरीकी भी शामिल। हमास का यह कहना है कि इसराइल ने जंगबंदी मुआहदे में तोसी के इवज मजीद 7 खातीन और यरगमाली बच्चों और 3 अफराद की लाश लेने से भी इनकार किया जो सियोनी फौज की बमबारी के दौरान ही हलाक हुए। राइटर्स के मुताबिक हमास ने अपने जंगजुओं को पैगाम जारी करते हुए कहा है कि जंगबंदी में तोसी ना होती तो लड़ाई के लिए तैयार थे। अलेक्साम ब्रिगेड्स ने अपनी फोर्सेस को जंगबंदी मुआहदे के आखिरी घंटों में एक बड़ी लड़ाई की तैयारी रखने की भी हिदायत जारी की है। दूसरी जानिब इसराइल ने भी मजीद 30 फलस्तीनियों को रिहा कर दिया। और खबर आपको दें कि इसराइली बमबारी में अपनी लाडली पोती को खो देने वाले दादा की जंगबंदी के बाद वापसी। पोती की पसंदीदा गुड़िया को उठाया, चूमा और फूट फूट कर रोने लगे। गमजदा दादा ने बताया कि जहां कभी उन बच्चों के कह के गूंजते थे और शरारतें उछलती कूदती थी, वहीं अब वैरानी के ढेर नजर आते हैं और खा जाने वाली खामोशियां हैं। टूटे फूटे खिलौने अपने उन दोस्तों की याद ताजा करवा रहे हैं जो मनो मट्टी तले हमेशा की नींद सो गए हैं। गमजदा दादा ने बताया कि जिस वक्त बमबारी हुई घर वाले सो रहे थे। प्यारी पोती की आवाज आई कि मुझ पर कोई भारी चीज गिर गई है। मैं दबी हुई हूं लेकिन वो मुझे नजर नहीं आ रही थी। मैं किसी तरह उस तक पहुंचा, अस्पताल लेकर गया, लेकिन सारी मेहनत किसी काम ना आई। जिसका खौफ था वही हुआ। मेरा सीना फट रहा था और मेरा दिमाग जैसे पक रहा हो। वो मुझे छोड़ गई, हमेशा के लिए वो मुस्कुराहटें खो गई। मैंने अपने चमन के सबसे खुशनुमा और मुअत्तर फूल को अलविदा किया। अल्लाह की अमानत उसके हवाले की। ना जाने कब कैसे किसने वीडियो बना ली जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वरना तो गजा में रोज ही किसी ना किसी घर में चिराग बुझ जाता है और कोई फूल मुरझा जाता है। तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर केसेस की समाअत आज होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। जेल में होने की वजह से साबिक वजीर आजम को गुज़िश्ता समाअत पर पेश नहीं किया गया। चेयरमैन पीटीआई को सिक्योरिटी खदशात के बायस अडयाला जेल से इलेक्शन कमीशन नहीं लाया गया। आज की समाअत के दौरान भी साबिक वजीर आजम को इलेक्शन कमीशन के सामने पेश ना किए जाने की तवक्को है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी भी गिरफ्तारी के बायस गुज़िश्ता समाअत पर पेश नहीं हुए। असद उमर भी गैर हाजिर थे। इलेक्शन कमीशन ने दोनों साबिक वफाकी वज़रा को जाती हैसियत में तलब कर रखा है। आज की समाअत में असद उमर और फवाद चौधरी भी फर्द जुर्म लगने का इम्कान है। आगे बढ़ते हुए खबर आपको दें कि एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, यूसुफ गिलानी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी दीगर के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समाअत 20 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। समाअत जज मोहम्मद बशीर ने की। नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबा, अशद तबरेज, नैब प्रोसिक्यूटर इरफान भोला और सुहेल आरिफ अदालत में पेश हुए थे। नवाज शरीफ के प्लेटर राना इरफान भी अदालत में पेश होकर
शामिल तफ्तीश हो गए। वकील सफाई का यह कहना था कि सवालात दे दिए गए हैं, सवालात के जवाबात भी फराहम कर दिए हैं। प्रोसिक्यूटर ने अदालत में कहा कि मजीद कार्रवाई होगी, इसके लिए थोड़ा वक्त दरकार है। वकील सफाई काजिम इसबा ने अदालत में कहा है कि नवाज शरीफ शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। सवालनामा मुहैया किया गया था, 2019 में नैब रेफरेंस बनाया गया। इस वक्त नवाज शरीफ इंतहाई अलील थे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की तरफ से गाड़ी लेने का कोई मुतालबा नहीं था, कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है कि नवाज शरीफ ने कोई भी गाड़ी मांगी हो। इस पर अदालत ने नैब से इस्तफसार किया कि अब इस पर क्या करें। प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि अभी बयान देखेंगे और फिर इस पर मजीद कार्रवाई होगी। अदालत ने केस पर समाअत को 20 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दिया। आपको अहम खबर से आगाह करें कि एफआईए मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में बड़ी पेशरफ सामने आई है। साबिक वफाकी वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के बेटे चौधरी मोनस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू कर दी। मोनस इलाही से मुतालिक मुख्तलिफ जगहों पर इश्तिहारात आवेजा कर दिए गए, जिसमें तहरीरी लिखा गया कि मोनस इलाही को आज अदालत में पेश होने की मोहलत दी गई थी, लेकिन वो रूपोश है और वो अदालत में पेश नहीं हो रहे। और खबर आपको दें कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए पाकिस्तान के साथ $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में तोसी कर दी है। स्टेट बैंक के मुताबिक सऊदी फंड ब्राइट डेवलपमेंट SFD ने सऊदी अरब की जानिब से 5 दिसंबर 2023 को मुद्दत मुकम्मल करने वाले $3 अरब की डिपॉजिट में तोसी के लिए यह रकम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की जानिब से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा है। तोसी ममलिकत सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को फराहम की जाने वाली माली मुआवनत का तसलसल है। स्टेट बैंक का यह कहना है कि सऊदी अरब के इस इक़दाम से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर को बरकरार रखने और मुल्क की मुआशी तरक्की में मदद मिलेगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जाती दिलचस्पी के बायस लाहौर का चौथा मेगा मंसूबा अकबर चौक फ्लाईओवर भी मुकर्ररा मुद्दत से पहले मुकम्मल कर लिया गया। अकबर चौक फ्लाईओवर को 10 माह की बजाय 7 माह से भी कम मुद्दत में मुकम्मल कर लिया गया। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मंसूबे की मुद्दत तकमील 10 माह मुकर्रर की गई थी। रवां साल होने वाली शदीद बारिशों के बावजूद मंसूबे को मुद्दत तकमील से पहले ट्रैफिक के लिए आज खोला जाएगा। अकबर चौक पर 1.1 किलोमीटर के 2 फ्लाईओवर्स और 10 प्रोटेक्टेड यू टर्न्स बनाए गए हैं। सूबाई दारुल हुकूमत में आम ट्रैफिक के लिए बनने वाले ये सबसे तवील फ्लाईओवर्स हैं। मंसूबे की तकमील से वहदत रोड ता पीको रोड सिग्नल फ्री कॉरिडोर बन गया है। अकबर चौक, जिनाह अस्पताल, मॉडल टाउन लिंक रोड, कच्चा जेल रोड, पीको रोड और मादरे मिलत समेत 10 मकामात पर प्रोटेक्टेड यू टर्न्स बनाए गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज अपना 56वां यौम तासीस मना रही है। यौम तासीस की मरकजी तकरीब कोयटा में होगी, जिससे बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। रोटी, कपड़ा और मकान के नारे से मशहूर होने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद 1967 में आज ही के रोज लाहौर में डॉक्टर मुबशर हसन के घर रखी गई है। पीपल्स पार्टी के जयाले आज भी पार्टी के बानी शहीद जुल्फिकार भुट्टो की बलबला अंगेज तकरीरों के सहर में मुब्तला है। बेनजीर भुट्टो शहीद की यादें भी दिलों में आज भी जिंदा हैं। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने अमीर तबके की बजाय आम आदमी के मसाइल पर जोर दिया, किसानों और मजदूरों को उनके हकूक से मुतालिक आगाही दी। यही वजह थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के अंदर मकबूल जमात के तौर पर उभरी। मगर जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के बाद पीपल्स पार्टी पर मुश्किल तरीन वक्त आया। ज़ियाउल हक के माशाल्लाह में जियालों ने कोड़े खाए और कैदो बंद की सौबतें भी बर्दाश्त की हैं। बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद क़यादत का मसला रहा, तो कभी क़यादत में इख्तियारात का तनाज़ा या फिर दीगर सियासी जमातों से मुकाबले का चैलेंज भी दरपेश रहा। चारों सूबों की जंजीर करार दी जाने वाली पीपल्स पार्टी हर दौर में किसी न किसी बहरान से जरूर गुजरी है। आज तासर आम है कि पार्टी एक सूबे तक महदूद होकर रह गई। अब देखना यह है कि नौजवान की आदत एक बार फिर आदमी का इत्तेमाद कैसे हासिल कर सकती है।
पीपल्स पार्टी आज अपना 56वां यौम तासीस मना रही है। यौम तासीस की मरकजी तकरीब कोयटा में होगी, जिससे बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। रोटी कपड़ा और मकान के नारे से मशहूर होने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद 1967 में आज ही के रोज लाहौर में डॉक्टर मुबशिर हसन के घर रखी गई। पीपल्स पार्टी के जयाले आज भी पार्टी के बानी शहीद जुल्फिकार भुट्टो की वलवला अंगेज तकरीरों के सहर में मुब्तला हैं। बेनजीर भुट्टो शहीद की यादें भी दिलों में जिंदा हैं। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने अमीर तबके के बजाय आम आदमी के मसाइल पर जोर दिया, किसानों और मजदूरों को उनके हकूक से मुतालिक आगाही दी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अब्रे रहमत। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में अली सुबह होने वाली हल्की बारिश के बाद ठंडी हवाएं चलने लगी। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आ गया। बारिश की वजह से लाहौर पर छाए स्मॉग में भी कमी हो गई। फिजाई आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में 5वें नंबर पर आ गया। शहर में स्मॉग की औसत शरह 192 रिकॉर्ड की गई। कसूर शहरों गिरदोनवाह में आसमान पर काली घटाएं छा गई। सर्द हवाओं के साथ हल्की हल्की बूंदाबांदी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। दूसरी जानिब वादी नीलम के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। वादी नीलम में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर समेत ज़ेरी इलाकों में शदीद बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। सियाहती मकामात रती गली, अड़ंग गेल, तौबत, लवावात बाला में बर्फबारी से राबता सड़कें मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला रात तक जारी रहने का इम्कान है। बलूचिस्तान में भी बारिश और तेज हवाओं के बाद मौसम शदीद सर्द हो गया है। कई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमान से भी नीचे आ चुका। आलमी मंजरनामे से खबर आपको देंगे कि साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर 100 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। यादगारी तकरीब न्यूयॉर्क में मुनक़िद की जाएगी। हेनरी किसिंजर 100 बरस की उम्र में आखिरी वक्त तक इंतहाई फ़ाल रहे और व्हाइट हाउस के इजलासों में शरीक होते रहे। उन्होंने रवां बरस जुलाई में बीजिंग का दौरा किया था, जहां उनकी मुलाकात चीनी सदर शी जिनपिंग से हुई। चीन के साथ अमरीका के ताल्लुकात हेनरी किसिंजर के सबसे यादगार मिरास में से एक हैं। सोवियत यूनियन के खिलाफ सर्द जंग के पेश नजर वो खुफिया तौर पर चीन गए थे, जिसका नतीजा 1972 में अमरीकी सदर रिचर्ड निक्सन की तारीख दौरा चीन और बाद चीन के साथ अमरीकी ताल्लुकात के कयाम की सूरत में उभर कर निकला। हेनरी किसिंजर को अमरीकी खारजा पॉलिसी की ताकत का मरकज तस्वुर किया जाता था। इसी वजह से वो मतनाज़ भी रहे। वो कई किताबों के मुसन्निफ भी थे। उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर भी खिदमत सर अंजाम दी। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। 29 नवंबर को 1600 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। 15 अगस्त 2022 से अब तक पाकिस्तान छोड़ने वाले अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 3,87,000 से जायद हो गई है। 1600 अफगान शहरियों में 363 मर्द, 362 खवातीन और 865 बच्चे शामिल हैं। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 52 गाड़ियों में 352 खवातीन खानदानों की वतन वापसी अमल में लाई गई। आपको बताएं कि गैर कानूनी अफगान बशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। 29 नवंबर को 1600 गैर कानूनी अफगान बशिंदे अपने मुल्क चले गए। 15 अगस्त 2022 से अब तक पाकिस्तान छोड़ने वाले अफगान बशिंदों की कुल तादाद 3,87,000 से जायद हो चुकी है। 1600 अफगान शहरियों में 373 मर्द, 362 खातीन और 865 बच्चे भी शामिल हैं। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 52 गाड़ियों में 362 खानदानों की वतन वापसी अमल में लाई जा चुकी है। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की एक और बड़ी कार्रवाई 7 रुकनी बदनामे जमाना बैनुल सूबाई मनशियात स्मगलिंग गैंग को सरबराह समेत गिरफ्तार कर लिया है। अल्लाह नूर नामी मनशियात स्मगलर गिरोह का सरबराह बताया जाता है। ये गिरोह मोटरवे के जरिए बैनुल सूबाई मनशियात स्मगलिंग में मुलविस निकला है। गैंग के खिलाफ जामिया मनसूबा बंदी के बाद कार्रवाइयां अमल में लाई गई हैं। पहले गैंग के 6 अरकान को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाइयों के दौरान 419 किलोग्राम मनशियात बरामद हुई है। मनशियात में चर्स और अफ्यून शामिल
ANF ने 18 नवंबर 2023 को गिरोह के सरगना अल्लाह नूर को भी गिरफ्तार कर लिया था। दौरान गिरफ्तारी मुलजिम अल्लाह नूर से मजीद 12 किलोग्राम चर्स बरामद की गई थी। आपको बताते चलें कि एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की एक और बड़ी कार्रवाई मंजर आम पर आई है। 7 रुकनी बदनाम जमाना बैनुल सूबाई मुनशियात स्मगलिंग गैंग को सरबरा समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। अल्लाह नूर नामी मुनशियात स्मगलर गिरोह सरबरा बताया जाता है। ये गिरोह मोटरवे के जरिए बैनुल सूबाई मुनशियात स्मगलिंग में मुलविस हैं। गैंग के खिलाफ जामे मनसूबा बंदी के बाद कार्रवाइयां अमल में लाई गई हैं। पहले गैंग के 6 अरकान को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाइयों के दौरान 419 किलोग्राम मुनशियात बरामद हुई है। मुनशियात में चर्स और अफ्यून शामिल, जबकि ANF ने 18 नवंबर 2023 को गिरोह के सरगना अल्लाह नूर को भी गिरफ्तार कर लिया। दौरान गिरफ्तारी मुलजिम अल्लाह नूर से मजीद 12 किलोग्राम चर्स भी बरामद हुई है। आपको अपडेट करते चलें इस खबर से मुतालिक एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की एक और बड़ी कार्रवाई मंजर आम पर आई। 7 रुकनी बदनाम जमाना बैनुल सूबाई मुनशियात स्मगलिंग गैंग को सरबरा समेत गिरफ्तार कर लिया है। अल्लाह नूर नामी मुनशियात स्मगलर गिरोह का सरबरा बताया जाता है। मजीद तफसीलात जानते हैं रावलपिंडी से टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने सीनियर रिपोर्टर अली असगर भट्टी से। जी अली असगर, अपडेट कीजिएगा। जी 7 रुकनी बदनामा बैनुल अक़वामी मुनशियात स्मगलरों को गिरफ्तार किया। अनूरुल्लाह नामी मुनशियात स्मगलर सरबराह निकले। गिरोह के मोटरवे के जरिए बैनुल अक़वामी स्मगलिंग में मुलव्वस पाए गए। जामे मनसूबाबंदी के बाद कार्रवाई अमल में लाई गई। कार्रवाई के दौरान 419 किलो मुनशियात बरामद की गई। मुनशियात में चर्स शामिल थी। ANF ने 18 नवंबर 2023 को गिरोह के सरगना नूरुल्लाह को गिरफ्तार किया। दौरान गिरफ्तारी मुलजिम नूरुल्लाह ने से मजीद 12 किलो चर्स बरामद की गई। नूरुल्लाह गैंग गिरफ्तारी के लिए ANF के लिए नहायत अहम कामयाबी है। गिरोह की कामयाबी मुनशियात के खिलाफ जंग का एक संगे मील है। अली असगर भट्टी हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया अली असगर भट्टी। नाज़रीन, खबर आपको दें कि स्मगलिंग के खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। 19-23 नवंबर के दौरान मुल्क भर से वाफर मिकदार में स्मगल शुदा ईरानी तेल, खाद और चीनी बरामद कर ली गई है। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और KP से कुल 63 मेट्रिक टन खाद, 4.5 मेट्रिक टन आटा, 104 मेट्रिक टन चीनी और 0.9 मिलियन लीटर ईरानी तेल बरामद किया गया। 1 सितंबर से अब तक की अदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर से 2089 मेट्रिक टन चीनी, 202 मेट्रिक टन आटा, 2011 से खाद मेट्रिक टन और 1.69 मिलियन लीटर ईरानी तेल बरामद कर लिया गया है। निगरान हुकूमत, अस्करी क़यादत और मुतालिका इदारे मुल्क भर से स्मगलिंग जैसे मर्ज से छुटकारा हासिल करने के लिए पुरअज़्म है। इस पर मजीद बात करते हैं अपने सीनियर तज्ज़िया निगार एजाज डूगर से। जी एजाज, बताइएगा कि स्मगलिंग के खिलाफ हुकूमती इक़दाम से आगाही के लिए क्या मुमकिन है? जी देखिए, ये सितंबर के आगाज में हुकूमतें जो निगरान हुकूमत है उसने और अस्करी क़यादत ने ये फैसला किया कि पाकिस्तान के अंदर जो मुआशी बदहाली और डॉलर के बढ़ते हुए रेट और पेट्रोल जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहा था, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो उनके समझ में एक ही चीज आई कि स्मगलिंग की रोकथाम जो है वो जरूरी है। उसके बगैर जो है पाकिस्तान की मईशत जो है वो बेहतर नहीं हो सकती। पाकिस्तान के अंदर जो है डॉलर और बाकी चीजें जो है नीचे नहीं आ सकती। तो फिर हुकूमत पाकिस्तान ने और अस्करी क़यादत ने ये फैसला करके तमाम बॉर्डर्स के ऊपर सिक्योरिटी जो है तैनात करके उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस को रखा, जिसमें उसके बड़े मुस्बत नताइज सामने पूरी आवाम के सामने है, पूरी दुनिया के सामने है कि किस तरीके से डॉलर भी नीचे आ गया, पेट्रोल भी नीचे आ गया। अब मुआशी बदहाली जो पूरी दुनिया, स्पेशली आपका जो हमसाया मुल्क, आपका दुश्मन जो है
इंडिया जो है वो लगा के बैठा हुआ था कि कब जो है क्लैप्स करती है मार्केट, कब दुनिया के सामने ये पाकिस्तान जो है दिवालिया इसका होता है। लेकिन वो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उसके हुक्म से आपकी निगरान हुकूमत और अस्करी क़यादत ने बेहतरीन तरीके से इसको संभाला और स्मगलिंग की रोकथाम करके जो है पाकिस्तान के अंदर जो है वो हालात को बेहतर किया। अभी भी जब बात करें निगरान हुकूमत और आपकी अस्करी क़यादत की, आपकी पाक फौज की, तो वो बड़े पुरज़म है इस मामले में। वो कहते हैं कि स्मगलिंग जैसी ये जो नासूर है इसको हमने जड़ से खत्म करना है और वो उस पर काम भी कर रहे हैं। जी, हमारे साथ सीनियर तजिया निगार एजाज डोगर साहब मौजूद थे। आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। खबर आपको देंगे लाहौर में MSF मुस्लिम लीग काफ की मरकजी काबीना का अहम इजलास हुआ है। इजलास की सदारत सदर लाहौर राना मोहम्मद अब्दुल्ला ने की है। इजलास में सदर राना मोहम्मद अब्दुल्ला ने पार्टी में होने वाली अहम कामयाबियों पर अरकान की कोशिशों को सराहा और मुस्तकबिल की हिकमत अमली से ब्रीफिंग भी दी है। सीनियर नायब सदर और जनरल सेक्रेटरी भी इस इजलास में मौजूद थे। निगरान वफाकी वजीर IT डॉक्टर उमर सैफ से ग्रुप CEO यून कॉन्ट्रिक्यू की मुलाकात हुई है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर और टेलीकॉम सेक्टर के हवाले से भी गुफ्तगू की गई है। इस मौका पर CEO जैज आमिर इब्राहिम भी मौजूद थे। डॉक्टर उमर सैफ का यह कहना था कि आवाम को मियारी टेलीकॉम सर्विसेज की फराहमी पहली तरजीह है कि T20 को बेहतर करने के लिए कोशा हैं आवाम को बेहतर टेलीकॉम सर्विसेज की फराहमी के लिए जल्द स्पेक्ट्रम ऑक्शन करेंगे। वजारत IT टेलीकॉम इंडस्ट्री को हर मुमकिन तावन भी फराहम किया जाएगा। 5G लॉन्चिंग के लिए पुरआज़्म है। जल्द ही आसान की साथ पर स्मार्टफोन्स की फराहमी भी शुरू कर दी जाएगी। जलालपुर पीरवाला में सर्दियां शुरू होते ही सोई गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी हो गया। 18 घंटे की तवील लोड शेडिंग से शहरियों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपनी नुमाइंदा ख्वाजा शहजाद अहमद से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। जलालपुर पीरवाला में सर्दियां शुरू होते ही जो गैस का बुरहान है वो शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस का जो लोड शेडिंग है उस 18 से 19 घंटे तक पहुंच गई है, क्योंकि जो 5 से 6 घंटे जिसमें गैस आती है उसमें भी प्रेशर न होने के बराबर है। और जो बच्चे हजरात हैं जो स्कूल जाते हैं और ऑफिस के लिए जो जाते हैं उनको भी बगैर नाश्ते के जो ना जाना पड़ता है। और जब शहरियों से हमारी बात हुई, शहरियों का कहना था 5 से 6 घंटे जो ना गैस आती है उसमें भी प्रेशर न होने के बराबर है। आला हुकाम से मुतालबा किया जा रहा है कि 5 से 6 घंटे जिसमें गैस आती है उसको जो ना प्रेशर को बढ़ाया जाए, ताकि जो हम जो ना नाश्ता करके जाया जा सके। और जो स्कूल के लिए टीचर आ जाते हैं और जो ऑफिस के लिए जाते हैं, ख़ुसूसन जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको बगैर नाश्ता किए जाना पड़ता है। तो यही मुतालबा किया जा रहा है कि जो ना इसको प्रेशर को बढ़ाया जाए ताकि जो ना इसकी कमी का सामना ना हो। जी, कुल जलालपुर पीरवाला में सर्दियाँ शुरू होते ही जो गैस का बुरहान है वो शिद्दत कामों की से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां थाना वाहंदों की खदूद में चची ने अपने आशना से मिलकर 13 साल भतीजे को एक वाह के बाद जिंदा जला दिया। पुलिस के मुताबिक तंबोली की आयशा को भतीजे सुलेमान ने दोस्त उमर के साथ देख लिया। रास फाश होने के खौफ से मुल्जिमान ने सुलेमान आग लगाकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुल्जिमा आयशा को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका आशना फरार हो गया। पुलिस ने मकतूल के वालिदा की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। डिस्ट्रिक्ट झंग से आने वाले नए असिस्टेंट कमिश्नर्स ने तहसील शोरकोट का तरबियती दौरा किया है। उन्होंने THQ शोरकोट, लैंड रिकॉर्ड ऑफिस, कश्मीर शुगर मिल्स और तहसील ऑफिस शोरकोट का भी विजिट किया है। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट नियाज अहमद मुगल ने इनको मुख्तलिफ महकमा जात के बारे में मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग भी दी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलाम शबीर ताहिर वहां मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी गुलाम शबीर ताहिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास?
जी बिल्कुल मौजूद हूँ तहसील ऑफिस शुरकोट में। आपको बताता चलूँ तहसील ऑफिस शुरकोट में आज असिस्टेंट कमिश्नर शुरकोट नियाज़ मुगल के साथ यहाँ पर न्यू कमिंग जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो डिस्ट्रिक्ट जंग में उनकी तैनाती हुई है क्योंकि वो ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे आज के इन पूरे ग्रुप्स का जो ट्रेनिंग के लिए असिस्टेंट कमिश्नर आए हैं उनका मिशन क्या था, उनका मकसद क्या था और क्या काम। सर क्या बताएंगे आज इस हवाले से कि आपके पास न्यू कमिंग असिस्टेंट कमिश्नर जो अपॉइंट हुए हैं वो आए हैं, उनके बारे में आप क्या बताएंगे? जी हमारे ये प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस के 8 ऑफिसर्स यहाँ पे आए हैं डिस्ट्रिक्ट अटैचमेंट से। ये डिस्ट्रिक्ट की जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो वर्किंग है इसमें हमारे असिस्टेंट कमिश्नर की वर्किंग है और इसके अलाइड जितने भी ऑफिसर्स की वर्किंग है उसको देखने के लिए कि गवर्नमेंट की मशीनरी फील्ड में किस तरह काम करती है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को किस अंदाज से इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो उसका मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के तौर पे गवर्नमेंट ने इन्हें भेजा, तो आज ये हमारे पास आए। ये अभी सारा हमने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस विज़िट किया है, तहसील ऑफिस विज़िट किया है, इसके अलावा हमने THQ विज़िट किया है, पोलियो की टीम्स विज़िट की हैं, राजी रिकॉर्ड सेंटर विज़िट किया और शुगर मिल का हमने इनको विज़िट किया है और साथ में म्यूनसिपल कमेटी का विज़िट करवाया और ये सारी की सारी गवर्नमेंट की मशीनरी को वर्क करता हुआ देखना। सर आज आपने विजिट किया है, आपने क्या जो आप न्यू में गए आपको क्या लगा कि किस तरह का आपका विजिट रहा आज का? आज का विज़िट हमारा काफ़ी अच्छा रहा है। हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स देखे हैं। हम THQ में गए थे, वहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह जो लोग हैं उनको उनके जो मसाइल हैं उनको देखा जा रहा है। इस तरह आज यहाँ पर हमने देखे कि किस तरह डिजिटलाइजेशन हो रही है और आवाम के जो मसाइल हैं उनको उनके डोर स्टेप पे उनको ऑनलाइन तरीके से उनको सही किया जा रहा है। मैडम आप बताइए कि आप भी न्यू कमिंग डिस्ट्रिक्ट में आप आए हैं और आज तहसील शुरकोट विजिट किया, नियाज़ मुगल साहब आपके साथ हैं, तो आज क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो वर्किंग हो रही है कैसी हो रही है और आपने क्या सीखा यहाँ से? जी बहुत ज़बरदस्त चीज़ें सीखी हमने यहाँ से। पहले यहाँ पे रेवेन्यू सिस्टम का हमने हैंड ऑन एक्सपीरियंस लिया है कि कैसे वर्किंग करता है सारा। उसके अलावा जो हॉस्पिटल्स हैं, जो यहाँ का लोकल हॉस्पिटल है, उसके अलावा जो रूरल सेंटर है, पोलियो की जो टीम है, हमने उनकी वर्किंग देखी है, बहुत अच्छी वर्किंग कर रहे हैं। तो आई होप कि हम यही मॉडल रेप्लिकेट करें जब हम सर्विस में आए। जी बिल्कुल, उन ट्रेनिंग जो यहाँ पे कर रहे हैं उन्होंने भी अच्छी जो उनके विजिट रहा उनका ये। और न्यूज स्टूडियो में वक्त हुआ शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जनूबी वजीरिस्तान के कैडेट कॉलेज पेंके में पेरेंट्स डे के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। बताएं आपको कि जनूबी वजीरिस्तान के कैडेट कॉलेज पेंकई में पेरेंट्स डे के हवाले से तकरीब मुनक़िद हुई है। IGFC KP साउथ मेजर जनरल हारून हमीद तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक हुए हैं। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे आदम खान कुंडी जो इस वक्त तकरीब में मौजूद हैं। जी आदम खान, आगाह कीजिएगा। कॉलेज पिनकई जनूबी वजीरिस्तान में जहां पर पेरेंट डे मनाया जा रहा है। 11 साल हो गए कैडेट कॉलेज को, हर साल यहां पर पेरेंट डे मनाया जाता है। आज के यहाँ के मेहमान ख़ुसूसी मेजर जनरल हारून हमीद IGFC KP साउथ है और यहाँ पर इनामात तकसीम हुए, जिमनास्टिक के मुकाबले भी हुए और इसके अलावा यहाँ पर PT शो भी मुनक़िद हुआ। कॉलेज के क़याम का मकसद जनूबी वज़ीरिस्तान के नौजवानों को लाहौर सर्विसेज हस्पताल में कलमा बिल्डिंग की मनहदम इमारत के बारे में अपडेट शामिल करते हैं। MS डॉक्टर मनीर मलिक ने बताया है कि ज़ेर तमीर इमारत में पहले आग लगी जिस पर ठेकेदार ने मजदूरों को बाहर निकाल दिया। आग लगने से धुआं फैल गया जिसके बाद इमारत अचानक गिर गई। ठेकेदार के मुताबिक मजदूरों को कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचा है, उनकी गिनती पूरी है। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कर रहे हैं, आग लगने का तयन भी किया जाएगा। उन्होंने मजीद क्या कहा ये जानते हैं। ये जो कलमा बिल्डिंग सर्विसेज हॉस्पिटल की अंडर रीवैम्पिंग कंस्ट्रक्शन थी, ठेकेदार के बकौल सुबह जब लेबर काम कर रही थी तो उसमें आग लगी और उसके साथ ही आपने अपनी लेबर को उसने निकाल दिया। फिर सारी बिल्डिंग में धुआं फैल गया और जब सारे बंदे बाहर निकल गए तो उसके बाद ये 4 मंजिला बिल्डिंग कोलैप्स कर गई है। ठेकेदार की जो लेबर लगी हुई थी वो सारी की सारी पूरी है, हमने गिन ली है, अंदर कोई ही नहीं है और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू की भी टीम्स पहुंच गई हैं और मलबे को हटा रहे हैं और मजीद इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उस आग लगने की या धुआं फैलने की वजह क्या थी।
آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے 13ویں کانویکیشن کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں نگران صوبائی وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی ہے۔ گورنر پنجاب چانسلر محمد بلیغ الرحمان نے کانویکیشن کی صدارت کی۔ کانویکیشن میں وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز، وائس چانسلر فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل، پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اعجاز حسین، رجسٹرار پروفیسر ڈاکٹر اصغر نقی، پروفیسر ڈاکٹر عمران، فیکلٹی ممبران اور فریش گریجویٹ سمیت ان کے والدین بھی شریک ہوئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سید آصف الیاس کی اس رپورٹ میں۔ اس موقع پر گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان، نگران صوبائی وزیر صحت پنجاب پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم نے تمام کامیاب ہونے والے فریش گریجویشن اور ان کے والدین کو مبارکباد دی۔ کانوینشن کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک اور قومی ترانے سے کیا گیا۔ رجسٹرار پروفیسر ڈاکٹر اصغر نقی نے فریش گریجویشن اور پروفیسر احسن نعمان نے پوسٹ گریجویشن سے خدمت انسانیت کا حلف لیا۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان اور نگران صوبائی وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم نے نمایاں طلبہ طالبات میں گولڈ میڈل اور ڈگریاں تقسیم کی۔ تمام مضامین میں اول پوزیشن حاصل کر کے 4 گولڈ میڈل حاصل کرنے والی ڈاکٹر حائفہ فاطمہ کو یونیورسٹی کی جانب سے 2 لاکھ روپے کا چیک پیش کیا گیا۔ وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز نے ادارے کی کارکردگی اور مختلف پروگراموں پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ نگران صوبائی وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کا اظہار خیال کرتے ہوئے کہنا تھا کہ تمام کامیاب ہونے والے فریش گریجویشن اور ان کے والدین کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آج کامیاب ہونے والے طلبہ طالبات کو اپنے والدین کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ خوابوں کی تعبیر کے لیے ہمیشہ بڑے خواب دیکھنے چاہیے۔ وزیر صحت کا مزید کہنا تھا کہ ایک ڈاکٹری کامیابی اس کے مریضوں کی دعاؤں میں چھپی ہوتی ہے۔ مجھے کیمولین ہونے پر فخر ہے۔ یہ ہماری تمام کامیابی ہمارے والدین سے ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں توازن رکھنا چاہیے۔ آج یہ فریش گریجویشن کا دن ہے۔ سی سی پی او لاہور ایڈیشنل آئی جی بلال صدیق کمیانہ کی سربراہی میں لاہور پولیس سماج دشمن عناصر کی بہتری کے لیے سرگرم عمل ہے۔ رواں سال میں کائٹ فلائنگ کے 5059 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ گرفتار ملزمان کے قبضہ سے 86,000 سے زائد پتنگیں اور 8,000 سے زائد چرخیاں برآمد ہوئی ہیں۔ کینٹ ڈویژن میں کائٹ فلائنگ کے 1107 مقدمات، سول لائنز میں 593، سٹی میں 1454، جبکہ اقبال ٹاؤن میں 690، صدر میں 404، ماڈل ٹاؤن میں 911 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ ون ویلرز کے خلاف کارروائیوں میں 4,919 مقدمات درج ہیں، جبکہ 5,000 سے زائد ملزمان کو گرفتار کر کے جیل بھی بھجوایا گیا ہے۔ کینٹ ڈویژن میں ون ویلنگ کے 911 مقدمات، سیول لائنز میں 933، سٹی میں 1215، اقبال ٹاؤن میں 573، جبکہ صدر میں 453، ماڈل ٹاؤن میں 834 مقدمات درج ہیں۔ اس طرح رواں سال میں ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کے دوران 8,912 مقدمات درج ہوئے ہیں۔ ترجمان لاہور پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کے قبضہ سے 130 کلیشنکوف، 596 ریفلز، 25 گنز، 7,796 پسٹلز اور 8,12,005 گولیاں برآمد ہوئی ہیں۔ سی سی پی او نے ہدایت کی ہے کہ ناجائز اسلحہ، پتنگ بازی، ون ویلنگ میں ملوث افراد کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ڈی آئی جی آرگنائزڈ کرائم یونٹ کی حکم پر اغوا برائے تاوان سیل کی کارروائی ہوئی ہے۔ مغوی علی رضا کو اغوا کر کے قتل کرنے والا 3 رکنی گینگ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزمان سرغنہ علی عباس، بشرا بی بی اور سریہ بی بی نے چند ہفتے ہی قبل مغوی علی رضا کو اغوا کر کے بے دردی سے قتل کر کے ناش کو شرک پور شریف کے علاقے میں کھیتوں میں پھینک دیا تھا۔ ملزمان نے دوران تفتیش انکشاف کیا ہے کہ مقتول علی رضا کو بشرا بی بی کی بیٹی کے ساتھ تعلقات کے شبہ میں قتل کیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمان کو پیشہ ورانہ صلاحیتوں، جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے مختصر وقت میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ڈی آئی جی آرگنائزڈ کرائم یونٹ لاہور کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی ملک نے ڈی ایس پی سٹاف میاں انجم توقیر اور ان کی ٹیم کو شاباش دی۔ نوجوانوں بالخصوص خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے پاک فوج صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر تمام تر وسائل بروئے کار لانے کے لیے
पुरज़्म हैं। हसन खैल पेशावर में डिजिटल स्किल्स सेंटर खातीन को बासलाहियत, हुनरमंद और बाइख्तियार बनाने में सरगर्म है। गवर्नमेंट हाई स्कूल शमशतू में डिजिटल स्किल्स प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया है। कुछ हफ्ते कबल ख्वानदगी मुहिम तालीम सब के लिए के पहले मरहले में लड़कों के लिए जदीद तकाज़ों पर मबनी कंप्यूटर लैब का एहतमाम किया गया है। दूसरे हिस्से में प्रोग्राम का दायरा कार लड़कियों के लिए भी वसी किया गया। इस प्रोग्राम के तहत तालिबात 3 माह के अरसे पर मबनी मुख्तलिफ कोर्सेज में दाखिला ले सकती हैं। सेंटर में इस वक्त 60 से ज्यादा तालिबात मुख्तलिफ कोर्सेज में तरबियत हासिल कर रही हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम को खवातीन की सहूलत के लिए वीक एंड तक बढ़ा दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा तालिबात मुस्तफीद हो सके। सेंटर में जदीद कंप्यूटर लैब कायम किया गया है जहाँ काबिल उस्ताज़ा की ज़ेर निगरानी तालीम दी जा रही है। तालिबात का यह कहना था कि खवातीन के लिए कंप्यूटर लैब बनाने पर पाक फौज के शुक्रगुजार हैं। सेंटर का क़याम इस इलाके की खवातीन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। हसन खैल के मुशीरान बिलखसूस नौजवानों और खवातीन ने पाक फौज के इस अहसन इक़दाम को खूब सराहा है। मैं मोहम्मद स्कूल की स्टूडेंट, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। मैं पाक आर्मी की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे लिए कंप्यूटर लैब कायम की है। हमारे गाँव में हमारे लिए कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हम एक पसमानदा इलाके में रह रहे हैं, इसीलिए हमें तालीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मायारी तालीम के हिसाब कंप्यूटर तालीम तक होती है। इस पाक आर्मी ने हमारे लिए एक बेहतरीन लैब बनाई जिस लाहौर इन्वेस्टिगेशन रायवंड पुलिस शहरियों को इंसाफ देने में नाकाम हो गई। शहरियों की जान और माल इज्जत की हिफाजत करने का दावा करने वाले डीएसपी इन्वेस्टिगेशन रायवंड सर्कल और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन अपने पेटी बंद भाई को इंसाफ ना दे सके। मुद्दई मुकदमा मोहम्मद फारूक एफआईआर में मुल्जिम नामजद करवाने के लिए इन्वेस्टिगेशन के दफातर के चक्कर लगाता रहा, लेकिन किसी ने एक ना सुनी। मजीद मामला क्या है, तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। का इलाका है जहां पर बच्चों की मामूली तलखला बड़ों के दरमियान झगड़ा हो गया और देखते ही देखते 8 से 10 गुंडा नासर मुसल्ला डंडे सोटे जो है वो शहरी फारूक के घर में दाखिल हुए, जबरदस्ती और तोड़ फोड़ की, खवातीन के कपड़े फाड़े, इसके अलावा धमकियां दी और घर को नुकसानात भी पहुंचाया गया। जिस तरह से मुकदमा दर्ज करने के हवाले से देखा गया, ऑपरेशन विंग ने जो है वो फिल फॉर मुकदमा दर्ज कर दिया, लेकिन इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रायविंड की अगर बात की जाए तो जिस तरह से मुद्दई मुकदमा मोहम्मद फारूक जुर्म आजाद करवाने के लिए जब भी थाना जाता है तो उसको टाल मटोल से काम ले लिया जाता है क्योंकि वो गरीब आदमी है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन यही चाहते हैं कि इनके दरमियान सुलह सफाई हो जाए। जब एक मुकदमा दर्ज हो गया, सुलह सफाई करना मुद्दई का हक है, लेकिन इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और दीगर पुलिस अफसरान जो है वो यही चाहते हैं कि इनकी सुलह सफाई हो जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर डीएसपी के पास एप्लीकेशन गई थी, बकायदा डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने भी कहा था कि जुर्म आजाद कर दो, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को कहा गया था जुर्म आजाद करने के हवाले से, लेकिन उन्होंने तब से मस नहीं हुए, बकायदा तौर पर यही कहते रहे कि मैं करता हूँ और मुद्दई को टाल मटोल से काम लेते रहे। अगर इस तरह से मुकदमा दर्ज होते हैं तो उसका जुर्म आजाद करने के लिए ततीमा बयान दिया जाता है, तो ऐसे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो है वो गफलत लापरवाही से काम लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है उनको थाना में तैनात करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि डीएच इन्वेस्टिगेशन की जानिब से भी कहा गया है कि शहरी को हर वक्त जो है वो थाना के अंदर इंसाफ मुहैया करना है। जो मुद्दई मुकदमा हो और जो चोर डाकू होता है या कोई जुर्म करने वाला होता है उसको गिरफ्तार करके जेल भिजवाया जाए। लेकिन कमर साजिद इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने जो है वो मुद्दई मुकदमा को अखबार करके रख दिया है। सुबह दोपहर शाम उसको जो है वो थाने लगाने पड़े, लेकिन फिर भी उसका जो है मुकदमे का जुर्म आजाद नहीं किया जाता। तो ऐसे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के जो है वो मुद्दई मुकदमा का कहना था कि डीएजी सिल फॉर एक्शन है और इसको महकमा पुलिस से जो है डिसमिस किया जाए। जी चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबर आपको दें कि एसडीपीओ चूनिया सर्कल राना जाहिद अली की खसूसी हिदायत पर मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ऑपरेशन एसएचओ थाना सदर चूनिया आबिद महमूद छीना की क़यादत में किया गया है। अरशद उर्फ अच्छी और नासिर रांझा नामी 2 मुल्जमान भारी मिकदार में शराब ले जाते हुए गिरफ्तार हुए। मुल्जमान के खिलाफ मुकदमात नंबर 813 और 812 दर्ज हैं। इलाके को मनशियात फरोशों और जराइम पेशा नासिर से पाक करने का मिशन जारी है।
जराइम पेशा नास्त के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अहले इलाका जराइम पेशा नास्त के खिलाफ हर तरफ से इतलात भी दे सकते हैं। सीसीपी लाहौर और डीआईजी ऑपरेशंस के अहकाम की रोशनी में एसपी सिटी की सरबराही में पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। एसएचओ मिस्री शाह मोहम्मद रमान की बड़ी कार्रवाई। ऑनलाइन बुकिंग करके मुख्तलिफ मकामात पर पतंगों की सप्लाई करने वाला मुलजिम जुनेद जफर धर लिया गया है। तर्जुमान सिटी डिवीजन मोहम्मद रियाज के मुताबिक मुलजिम के कब्जा से 5000 पतंगे, 80 केमिकल डोर की चरखियां और तंदी की मुतादिद गुच्छियां बरामद कर ली गई हैं। एसएचओ मिस्री शाह के मुताबिक मुलजिम पाबंदी के बावजूद पतंग फरोशी का घिनौना धंधा कर रहा था। पतंग फरोशी के सामान की सप्लाई नाकाम बनाने पर डीआईजी ऑपरेशंस ने मिस्री शाह पुलिस की टीम को शाबाश दी है। मुस्लिम लीग काफ के मरकजी रहनुमा चौधरी सालिक हुसैन ने कहा है कि साल 2022 में 3 माह ये फैसला ही नहीं किया कि इंतखाबात में जाना है या हुकूमत संभालनी है। तमाम सियासी जमातें मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने का प्लान दें, वरना इंतखाबात का कोई फायदा नहीं है। तमाम सियासी जमातों को चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर दस्तखत करने होंगे। चौधरी सालिक हुसैन इकोनॉमिक रिपोर्टर्स एसोसिएशन से मुलाकात में इजहार ख्याल कर रहे थे। मजीद तफसीलात अली फारूक की इस रिपोर्ट में। चौधरी सालिक हुसैन ने पाकिस्तान इकोनॉमिक्स रिपोर्टर्स एसोसिएशन के अरकान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क को माशी बुरहान से निकालने के लिए सियासी जमातें अपने प्लान का ऐलान करें। हम 2022 में पहले 3 माह ये फैसला नहीं कर सके कि हुकूमत संभालनी है या इंतखाबात में जाना है। आपको जिन हालात में चीज़ें मिली, आपको टाइम चाहिए था उसको दोबारा से टर्न अराउंड करने के लिए। लेकिन पहले ही सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि जो गलती थी वो ये थी कि पहले 3 महीने ये फैसला ही नहीं कर सके कि इन्होंने हुकूमत संभालनी है, चलानी है या इलेक्शन में जाना। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप, ये कोई मुल्क है जी, कोई छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं कि आप आराम से सुकून से बैठ के फैसला सोचते रहें क्या करना है। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि ईरान से गैस और दीगर तवानाई की जरूरियात हासिल कर लें तो इससे $10 अरब सालाना की बचत होगी। हमारी इंपोर्ट हो रही है, यहाँ तक कि हमारा जो फ्यूल है वो इंपोर्ट हो रहा है, गैस इंपोर्ट हो रही है। मैंने तो बहुत प्रोपोगेट किया था कि जी हमें ईरान के साथ अपने एनर्जी नीड सारी वहाँ से पूरी करनी चाहिए। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि जब तक इलेक्शन शेड्यूल कागजात नामजदगी वसूल करने का ऐलान नहीं। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।